All right, everyone. Let's start October, November 2023, variance 52, paper 5, planning, analysis, and evaluation. Duration of this paper is 1 hour 15 minutes. We need to cover all the questions. I believe we have 2 in this paper. The total marks in this paper is 30. So question number 1. Thermometric titration can be used to determine the standard enthalpy change of neutralization. And enthalpy change of neutralization कह रहे हैं, तो यहाँ से 2-3 चीजें आपको समझनी होंगी। पहली बात तो ये कि उन्होंने स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं ली, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज यूज्ड। और दूसरी बात ये कि एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज exothermic. Why it is always exothermic? Because oppositely charged ions are involved in the bond formation, and bond formation is always exothermic. Okay, one more thing, ये जो आपके पास exothermic है, this can be more exothermic or this can be less exothermic. Okay, the maximum temperature reached in the thermometric titration occurs at the point of neutralization. That's a very important point. जो maximum temperature है, that is your temperature change, वो point of neutralization पे determine होगा, ठीक है? Between an acid and an alkali, the diagram of the apparatus used is shown. तो ये आपका ब्यूरेट है जिसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका पॉलीस्टाइरीन कप है। इस पॉलीस्टाइरीन कप में थर्मोमीटर है, स्टिरर है और 25 cm³ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, हम सब जानते हैं कि थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। ओके, stirrer is used for uniform distribution of heat. ओके, पॉलीस्टाइरीन कब यूज कर रहे हैं? बिकॉज इट absorbs negligible amount of heat. ओके, और ब्यूरेट हम यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ब्यूरेट की जो एक्यूरेसी होती है वो 0.05 cm³, राइट, यानी 2 dP होती है। A student uses the following method. Transfer 25 cm³ of 1 mole per dm³ dilute hydrochloric acid into a polystyrene cup. Obviously guys, इस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आप यूज करेंगे वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। आप ग्रेजुएटेड पिपेट भी लिख सकते हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, बट वॉल्यूमेट्रिक पिपेट वर्ल्ड वाइड फेमस, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। Okay, then place a thermometer with 0.2 degrees Celsius division into the HCl.
अच्छा, जो थर्मामीटर है उसकी 0.2 डिग्री सेल्सियस की डिवीजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चलो ठीक है, ओके, मतलब एग्जामिनर ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर आपके पास 21 है और ये आपके पास 22 डिग्री सेल्सियस है, सो इनके बीच में जो है वो 1, 1, 2, 3 एंड दिस वन इज 4, ठीक है, यानी ईच हैज 2.2 डिग्री सेल्सियस, तो 21.2, 21.4, 21.6, 21.8 एंड दिस इज 22। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान, यहाँ जो एरर इन सिंगल रीडिंग है वो कितना होगा, तो error in single reading is going to be 0.1 degree Celsius. इसका मतलब uncertainty 0.1 degree Celsius होगी, okay. Anyhow, add 5 cm cube of aqueous sodium hydroxide NaOH from the burette, stir and record the temperature of the solution in the polystyrene cup, okay. Immediately add another 5 cm cube of NaOH, stir and record the temperature of the solution in the polystyrene cup. What we are doing is कि हम यहाँ से 5 cm cube ऐड कर रहे हैं, stir कर रहे हैं, टेम्परेचर नोट डाउन करें, फिर 5 cm क्यूब ऐड करेंगे, स्टर करेंगे, फिर टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, फिर 5 cm क्यूब ऐड करेंगे, स्टर करेंगे, फिर टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, और हम उस वक्त तक टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे until there is no further increase in temperature is observed. Once the temperature starts to decrease, repeat step 4 3 more times. एक और प्रॉब्लम, why the temperature falls? Temperature falls, एक तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, ये कह सकते हो आप, the neutralization is uh, neutralization is finished, और दूसरी बात ये कि हीट लॉस भी तो हो सकता है ना, हीट लॉस decreases the temperature, ठीक है, ओके, सो वी हैव वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो हमने 5 cm क्यूब के उससे डिफरेंस से ऐड किया, और ये हमारा टेम्परेचर है, okay. Next part 1 is plot a graph of the temperature against volume of NaOH added on the grid, use the cross to plot each data point, okay. सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, मुझे इसको प्लॉट करना है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। 0 के ऊपर 18.8 है, 18.8, सो ये 18 है, ये 19 है, तो इसका मतलब ये 18.1, 18.5, 6, 7, 8, तो 0 के ऊपर 18.85, 6, 7, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, इस जगह के ऊपर पॉइंट आएगा हमारा, ये आ गया 0 के ऊपर 18.8, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 21.3 एट 5, 21.3, ये आ गया आपका 5 और 21.3, 1, 2, 3, ये आ गया 21.3, ओके, आई होप इट मेक सेंस टू यू, 21.3। फिर उसके बाद आपके पास है 23.8 at 10, 23.8 at 10, 23.8 at 10, 23.8 at 10, so
then 23, 23.5, 6, 7, 8, 23.8 आ गया ये आपका, ठीक है। then 15 पे 26.4, 15 पे 26.4, 26, 26.4, okay, then 15 पे 26.4 हो गया, okay, let me check, 1 2 3 4, या फिर उसके बाद 27.4, 27.4, तो ये हो जाएगा 20 पे 27.4, 27.4, 27.4, ये हो गया 27.4, ठीक है जी। देन फिर हमारे पास है 25 पे 26.2, 25 पे 26.2, 25 पे 26.2, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। देन 30 पे 25.1, 30 पे 25.1, देन 35 पे 24, 35 पे 24, and last but not the least 40 पे 23.2, 23.2, ये आ गया, ठीक। तो हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, उसके बाद वो कह रहे हैं draw two straight lines of best fit, one for the rise in temperature and one for the fall in temperature. Extrapolate the two lines so they intersect. Okay, चलिए इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। Mm, 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 mm. ठीक है जी, ये हो गया हमारा इंटरसेक्ट। अब हम इस वाले लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मेरा इंटरसेक्ट। After that, now the question is, use your graph to determine the maximum temperature change of the mixture. Assume the initial temperature of NaOH is 18.8 degrees Celsius. Maximum temperature change निकालना है, और maximum temperature change निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा T equals to T2 minus T1. I need to find out the value of T2, और T2 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर तो हमें दिया हुआ है, टेक्निकली वी हैव इनिशियल टेम्परेचर, और उससे मुझे टेम्परेचर मिल जाएगा, दिस वन, oops, wait, okay, no, yeah, so it's basically 27.9 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा T2 हो गया, इनिशियल मुझे दिया हुआ है 18.8, ठीक है जी। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 27.9 minus 18.8, so 27.9, 18.8 is going to be 9.1,
Now the next is use your graph to determine the volume of NaOH needed to neutralize 25 cm cube of 1 mole per dm cube HCl. मुझे एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ NaOH डिटरमिन करना है, वो भी मैं मैक्सिमम से ही डिटरमिन कर लूंगा, और मैक्सिमम से डिटरमिन करने के लिए मैं ये ले लेता हूँ होल्ड ऑन, बना सही, अब बन जाएगा माइनस। ठीक है, या अच्छा ये हो गया 15, ये है 20, ये हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, अगेन ये 16, 17, ये 17.5 और ये 18, 18 आ रहा है मेरे पास, 18 cm क्यूब। लेट मी चेक अगेन, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, and then 20. So it's exactly 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18. ठीक है, 18.0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये भी लिख देते हैं यहाँ पर हम 18.0 cm cube, ठीक है। Now the next is use your answer to 3 to calculate the concentration of NaOH in mole per dm2. So I know the concentration of HCl in volume. So first of all, I need to find out the moles of HCl. So 1000 cm cube of HCl contain how much moles? 1.0 moles. Okay, so if we have 25 cm cube, moles of HCl is going to be 25 into 1 divided by 1000. So ये हो जाएगा 25 divided by 1000 is going to be 0.025 moles. Okay, जो moles HCl के हैं वही moles NaOH के होंगे, because दोनों के दरमियान 1:1 का रेशियो है, because HCl is a monobasic acid. तो अगर आपने 0.025 moles फाइंड आउट किए हैं, तो moles of NaOH is 0.025 as well. Volume of NaOH आपने 18 cm क्यूब लिया है, तो 18.0 cm cube of NaOH has 0.025 moles. तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास, तुम्हारे पास मोल्स कितने होंगे? इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये हो जाएगा 1.388, तो 1.39 कर लेते हैं, 1.39 मोल पर डीएम। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। अच्छा, इससे पहले कि हम पार्ट नंबर 5 पे जाएं, एक चीज और भी देखनी है। देखिए, यहां से लेकर यहां तक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है,
ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रहा। और दूसरी बात, हम सिर्फ सोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग only solution, only NaOH, solution of NaOH. Okay, अच्छा इसमें एक चीज और भी देखें, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू हीट लॉस। अच्छा एक और चीज, बहुत से बच्चों को लगता है कि ये जो हमारा टेम्परेचर है ये बेसिकली टेम्परेचर चेंज है, ये टेम्परेचर चेंज नहीं है, ये फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, ये इनिशियल टेम्परेचर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टेम्परेचर चेंज आएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई, suggest why titration using an indicator is more accurate than a thermometric titration। देखिए थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन तो मैंने वैसी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ली हुई थी, है ना, और थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमने अभी देखा कि हीट लॉस होता है। और जब हीट लॉस होगा तो एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। thermometric titration has heat loss, so not an accurate experiment। जबकि using an indicator will give you a sharp endpoint or instant endpoint, while using an indicator will give sudden or instant color change। Okay, next is suggest the suitable piece of apparatus for the transfer of 25 cm cube or 1 mole per dm cube HCl in step 1। ये मैंने आपको वहीं बता दिया था कि हम एक्चुअली इसमें वॉल्यूमेट्रिक पिपेट यूज करेंगे। See, determine the percentage error of the measured temperature increase when the first 5 cm cube of NaOH is added। Okay, when the first 5 cm cube of NaOH is added, when 5 cm cube of NaOH is added, temperature was छोटी। तो टेबल पे चलते हैं। इनिशियल टेम्परेचर तो हमारे पास 18.8 था, और आपने यहाँ पर 5 पे 21.3 लिया, तो 21.3 माइनस 18.8 was 21.3 minus 18.8
So it's going to be okay, 21.3 minus 18.8 is going to be 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एरर इन सिंगल रीडिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको और वो है 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमने डिस्कशन की थी यहाँ पर, ये डिस्कशन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 0.2 डिग्री सेल्सियस की डिवीजन की थी, तो इसका मतलब एरर इन सिंगल रीडिंग वुड बी 0.1, यानी अनसर्टेनिटी 0.1 होगी। ठीक है, अब वो हमसे कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे एरर इन सिंगल रीडिंग, और क्योंकि हम दो रीडिंग लेते हैं, इनिशियल एंड फाइनल, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो हमारे पास टेम्परेचर कौन सा है, 2.5 डिग्री सेल्सियस इंटू 100 करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 8%। तो हम यहाँ 8% लिखेंगे। ठीक है, 0.1 into 2 divided by 2.5 into 100 is going to be 8 exact. Okay, now the next part is the standard, my bad, the standard enthalpy change of neutralization is defined as the enthalpy change when 1 mole of water forms from hydrogen ion and hydroxide ions. In another experiment, a student finds that 22.1 cm cube of 1 mole per dm cube NaOH. Okay, so I know the volume and concentration of NaOH, and so I can find the moles of NaOH. So मेरा पहला step, moles of NaOH. The 22.10 into 1.00 divided by 1000. So it's going to be how much? 22.1 into 1 divided by 1000 is going to be 0.0221 moles. Okay, next question read करते हैं। Increases the temperature by 6 डिग्री सेल्सियस, दैट इंडिकेट्स कि मेरे पास डेल्टा टी जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस है। When added to 25 cm cube of 1 mole per dm cube HCl, तो हमने बेसिकली क्या किया है, इतनी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के HCl के सॉल्यूशन में NaOH को ऐड किया, तो मैं यहाँ से HCl की भी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, सॉरी मोल्स निकाल सकता हूँ। सो ये हो जाएगा 25 into 1.00 divided by 1000. So it's going to be how much? 25 divided by 1000 is going to be 0.025 moles. Then it means कि ये आपका limiting reactant है because it has less moles. ठीक है, और ये आपके पास है एक्सेस अमाउंट है। और मैंने आपको क्लास में ये बताया था एएस में A2 में कि हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो यूज किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। नोट करें, इसमें 1:1 का रेशियो है बिटवीन दीज टू सब्सटेंसेस। एंड ऑल्सो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट कर लूंगा। मुझसे कह रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करो, यानी 1 मोल की कैलकुलेशन करो। वो कह रहे हैं assume mass of 1 cm cube solution has 1 gram। ठीक है, on the basis of this entire information मैं सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन करता हूं। तो मेरे पास 22.1 है प्लस 25.0 है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 22.1 प्लस 25 is going to be 47.1 cm cube, and according to the above information
it is going to be 47.1 ग्राम। ठीक है, तो मेरे पास ग्राम आ गया। मेरे पास डेल्टा टी है 6 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें मालूम है, तो हम सबसे पहले डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी अप्लाई कर देते हैं। मास हमारे पास है 47.1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स के अंदर गिवन है 4.18। टेम्परेचर चेंज इज 6, तो डेल्टा क्यू हमारे पास इंटू 6 इंटू 4.18 is going to be 1181.268। तो अगर मैं, और ये जूल्स में है मेरे पास यकीनन, ठीक है, मैं इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो डिवाइडेड बाय 1000 is going to be 1.181268 किलो जूल्स। मैं इसको राउंड ऑफ करके इस तरह से लिख सकता हूँ 1.1813 किलो जूल्स। ठीक है, मुझे एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करनी है, तो वो तो 1 मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ऑब्वियसली मैं यूज करूंगा अब NaOH के मोल्स। तो हम कहेंगे 0.0221 moles of NaOH gives you how much energy? 1.1803 joules, right? So अगर मैं 1 मोल में कैलकुलेशन कर लूं, so it's going to be delta HN. So डिवाइड कर देंगे हम इसको 0.0221 से, so it's going to be minus 53.4 किलो जूल्स पर मोल। हम यहाँ लिख देंगे -53.4। अब आप नोट करें, मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया। तो पहली बात ये, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में कह दिया था कि न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन मेंशन किया। ना तो क्वेश्चन इसके मैंने यहाँ साइन क्यों नहीं मेंशन किया, वो इसलिए क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर, यहाँ साइन मेंशन करना जरूरी होता है। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट पार्ट, the theoretical value for the standard enthalpy change of neutralization in the reaction between HCl and NaOH is this। आप जानते हैं कि ये strong acid है, ये strong alkali है, तो neutralization is always more exothermic, so this is more exothermic। और more exothermic इसलिए है क्योंकि ये दोनों strong acid और alkali हैं, so fully dissociate होते हैं या fully ionizes in aqueous medium। ठीक है, on the other hand, give one reason why the value you obtained in D differs from the theoretical value। okay, अब ये मोर एक्सोथर्मिक है, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है -53.4, और ये क्या कंसिडर कर रहा है एग्जामिनर इसको लेस एक्सोथर्मिक, जबकि है यहाँ पर भी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली, तो फर्क क्यों पड़ रहा है? वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस एक्सोथर्मिक इन कंपैरिजन। तो वो पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम बता देंगे कि हीट लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्ट इंसुलेशन ऑफ द कैलोरीमीटर। ठीक है, जिसकी वजह से हीट लॉस होगा इनटू द सराउंडिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे इम्परफेक्ट insulation of calorimeter resulting in heat loss
the surrounding. ओके और हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं था, ठीक है ना, हम ये भी तो कह सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं experiment was not carried out under standard condition. Okay, next is suggest why the standard enthalpy change of neutralization determined using ethanoic acid is less exothermic than standard enthalpy change of. आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, ये पार्टली आयनाइज होता है, ये फुली आयनाइज होता है, तो एक एक तो रीजन ये हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इथेनिक एसिड ionizes partially so ethanic acid ionizes partially as it is a weak acid. Also ethanic acid की जो डिसोसिएशन है वो एंडोथर्मिक है बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है. Dissociation of ethanic acid is endothermic. So जब ethanic acid रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो एनर्जी रिलीज होगी. So when ethanic acid so when ethanoic acid involves in the reaction, energy is released. This energy is used for the dissociation of ethanic acid because endothermic है इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. For the dissociation or ionization of ethanic acid. Okay, I hope it makes sense to you. That's the end of question number 1, guys. So everyone, let's start question number 2. A student investigates the rate of reaction when zinc reacts with dilute hydrochloric acid. Okay, first of all, this reaction is also called displacement reaction क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है इसलिए वो हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करेगा in the form of hydrogen hydrogen ion को displace करेगा in the form of hydrogen gas. Okay, by the way, this reaction is also called redox reaction.
And why redox? Because zinc is converting into zinc ions, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है. Whereas hydrogen ions are converted into hydrogen gas, that means decrease in oxidation state हो रहा है because +1 से 0 हो रहा है. Okay. और सबसे important चीज, we need to find out the rate. रेट फाइंड करने के दो तरीके हैं. पहला, rate equals to change in concentration over time taken. या फिर हम रेट को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, दैट इज 1/t. ठीक है. The student uses the following methods. Accurately weigh 1 gram of zinc foil. और जाहिर सी बात है, आपने इसको वे करना है, तो वे करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करेंगे. ठीक है. Then we have 50 cm cube of 2 mole per dm cube HCl in a conical flask. एंड ऑब्वियसली ये जो 50 cm क्यूब वॉल्यूम आप मेजर करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में डालने के लिए, ये आप ब्यूरेट से मेजर करेंगे, क्योंकि या तो ब्यूरेट 50 cm क्यूब की यूज कर लीजिए, या फिर 225 cm क्यूब की वॉल्यूमेट्रिक पिपेट जो है वो 2 टाइम्स यूज कर लीजिए. दोनों यूज हो सकते हैं. Add zinc foil to 50 cm cube of HCl in the flask and immediately start a timer. Timer start करने लगे, इसका मतलब we need a stopwatch to measure the rate of reaction. Stop the timer when 20 cm cube of hydrogen gas has been collected. That's very very important कि we need to measure 20 cm cube और उसके ऊपर हमने टाइम रोक देना है. Anyhow, hydrogen gas collect हो रही है, तो this gas needs to be collected in the gas range. अगर गैस रेंज में कलेक्ट नहीं करना चाहते तो ओवर वाटर वाया मेजरिंग सिलेंडर कलेक्ट कर लीजिए. Because hydrogen gas is insoluble in water. All right. Step 1 and 4 using lower concentration of HCl. Repeat करना है हमने. Anyhow, complete figure 2.1 to show the apparatus that the student can use to collect and measure the volume of hydrogen produced. Label your diagram. So मुझे दो चीजें determine करने के लिए कहा जा रहा है. To collect the gas, and obviously मैं gas range measure करूंगा, and measure the volume of hydrogen produced. Okay. Conical flask एग्जामिनर ने हमें दी हुई है. हम क्या करते हैं, इस कॉनिकल फ्लास्क को वाया डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं कैच रेंज के साथ. ओके. ये आपकी गैस रेंज है. ये ग्रेजुएशन मार्क है.
ठीक है, और ये प्लंजर है। ये प्लंजर है। ओके, ठीक। सो ये ग्रेजुएटेड गैस रेंज है। ये आपके पास डिलीवरी ट्यूब है। ठीक है, ऑब्वियसली ये आपके पास HCl होगा, और इस HCl की कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 2.0 मोल पर DMQ HCl। अब जाहिर सी बात है, मैंने जिंक फॉयल भी लेना है, तो जिंक फॉयल को लेने के लिए मैं एक ट्यूब लूंगा, उस ट्यूब के अंदर इस जिंक फॉयल को ऐड करूंगा। ये है मेरे पास ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर है जिंक फॉयल। ये है जनाब ट्यूब, और ये है जनाब फॉयल। ठीक है, तो ये जिंक फॉयल हो गया आपके पास, और ये स्मॉल ट्यूब हो गई आपके पास। इस स्मॉल ट्यूब को हम धागे से बांध के बाहर रख देते हैं, और अब हम इसको बंग लगा के बंद कर देते हैं, ताकि गैस जो है वो रिलीज ना हो। ठीक है, ये हमारा थ्रेड हो गया है। इस बंग को हम सील कर देते हैं। ये हमने सील कर दिया इसको, बल्कि इसको सील करने के लिए ज्यादा बेहतर है कि हम ये कलर यूज कर लें। ये हमने सील कर दिया प्रॉपर, ताकि गैस एस्केप ना हो, कोई एरर ना हो एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हैं। टेस्ट स्टॉप वॉच आपके पास है, आपने ये थ्रेड पकड़ के खींचेंगे, तो ये पूरी की पूरी ट्यूब इस HCl में ड्रॉप हो जाएगी। जब ड्रॉप होगी तो जिंक और HCl कांटेक्ट में आएंगे। जैसे ही वो दोनों कांटेक्ट में आएंगे, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जब 20 cm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाए तो स्टॉप वॉच स्टॉप कर दीजिए। ये डायग्राम मैंने प्रीवियस जो पेपर 5 है उसमें भी डिस्कस की हुई है। ओके, सो हमने कलेक्ट भी कर लिया। ओके, नेक्स्ट, द स्टूडेंट wants to perform a similar experiment using 0.1 mole per dm³ HCl। ये diluted है। Describe how the student should make a standard solution of 250 cm³ of 0.1 mole per dm³ HCl starting from a solution of 2 mole per dm³ HCl। यानी एक more concentrated से एक less concentrated solution बनाना है। इसका मतलब डाइल्यूशन करनी है मैंने, और डाइल्यूशन के लिए ऑब्वियसली मैं वर्किंग करूंगा, और वर्किंग कुछ इस तरह की है कि 1000 cm³ में हमारे पास
0.1 मोल है, सही है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। हाँ, तो हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, होल्ड ऑन। हम यूज कर लेते हैं C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2। अब देखें हमारे पास C1 हमें पता है 0.1 है, V1 हमें कैलकुलेट करना है, C2 हमें पता है 0.1 है, और V2 हमें पता है 250 है। सो 0.1 into 250 divided by 0.1, so it's going to be how much? अच्छा 2 है, 2। ओ माय बैड, दिस इज 2 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। सो ये 2 लीजिए। सो अब देखते हैं क्या है, 250 into 0.1 divided by 2, it's going to be 12.5, ठीक है। होल्ड ऑन अ सेकंड, 1000 cm क्यूब में 0.1 है, 250 में कितना, 250 into 0.1 divided by 1000, तो ये आपके पास हो गया 1000 cm क्यूब में 2 मोल है, multiply by 1000 divided by 2 is going to be 12.5, सही है। ये हमारा बेटा वॉल्यूम हो गया, एंड दिस मच अमाउंट वी नीड। इसमें एक चीज और भी है, give the name and size of any key apparatus that would be used to describe how the student should ensure volume is exactly 250 cm cube, that indicates कि भाई मुझे 250 cm cube की volumetric flask यूज करनी है instead of 100 cm cube, this time I'm going to use 250 cm cube volumetric flask, okay। so अब हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है ये वॉल्यूम हम पिपेट से तो मेजर नहीं कर सकते, ये वॉल्यूम हम ब्यूरेट से और मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर सकते हैं। तो ब्यूरेट वुड बी द बेस्ट एक्यूरेट एपरेटस फॉर दिस, फॉर द मेजरमेंट ऑफ 12.5 cm क्यूब। सो हम ब्यूरेट यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं टेक 12.5 cm क्यूब ऑफ HCl, बल्कि कौन सा HCl है, 2.0 मोल पर dm क्यूब HCl from the burette, ठीक है। इस एसिड को मैं ट्रांसफर करूंगा 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। Transfer this solution in a 250 cm cube volumetric flask, सॉल्यूशन को ट्रांसफर करने के बाद मैं डिस्टिल वाटर से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को टॉप अप करूंगा। टॉप अप द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क with distilled water up to the mark। स्टॉपर अप्लाई करूंगा, shake the flask well,
to mix well. Okay, next is the student carries out further experiment using higher concentration of HCl. Okay, जब concentration higher होती है तो rate of reaction भी higher होता है, क्योंकि number of effective collisions in a unit time increase हो जाता है. Higher rate of reaction. The student wears chemically resistant gloves when using 6 mole per dm cube HCl. Suggest why? It's a highly concentrated solution, right? So highly concentrated solutions are corrosive. I'm looking at 6.00 mole per dm cube hydrochloric acid solutions is corrosive. Okay. Next, the student obtains the result shown in table 2.1. Concentration given है मुझे. Time taken to collect 20 cm cube. ये 20 cm cube collect करने का time है, और ये आपका rate है. Examiner this time 1/t के through rate of reaction determine करवा रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं रेट निकालूंगा तो मैं टाइम को 1 को टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा, होल्ड ऑन, 1 डिवाइडेड बाय 15.62, so it's going to be 0.06402, राइट. और फिर उसके बाद ओके चले मैं पहले वैल्यूज ले लेता हूँ. 1 डिवाइडेड बाय 10.41, 0.09606, 0.09606, then 1 divided by 7.81, so it's going to be 0.1280, 0.12806, 804. Okay, then 1 divided by 6.25, so it's going to be 0.16, then 1 divided by 5.24, so it's going to be 0.1908. ये मैंने वैल्यूज डिटरमाइन कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. Complete the table by calculating 1/t for each concentration. Give your answer to 3 significant figures. मुझे बेसिकली जो आंसर है वो 3 significant figures में देना है, तो इन वैल्यूज को मैं 3 significant में लिख लेता हूँ. ये हो जाएगा हमारे पास 0.0640, ये हमारे पास हो जाएगा 0.0961961, ये हो जाएगा हमारे पास 0.128, ये हो जाएगा हमारे पास 0.160, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.19. ठीक है, 0.191. ठीक. Now the next part of the question is, use your data from table 2.1 to produce a sketch graph of 1/t against concentration in figure 2.2. Table को, it is not necessary to include a scale on the axis. Scale तो already given है. ठीक है. Label the sketch line A. Okay, जो sketch हम करें table 2.1. अच्छा, नोट करें. नोट ये करने का है कि concentration increase हो रही है, तो rate of reaction भी increase हो रहा है, right? So as concentration increases, rate of reaction also increases.
ओके। और यही वजह है कि जब रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है, यानी आप नोट करें रिएक्शन को कंप्लीट होने में कम टाइम लग रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कम टाइम लगेगा। कॉन्सेंट्रेशन कम, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो, टाइम ज्यादा लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में। ओके, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट इज बेसिकली, अगर मैं स्केच ड्रॉ करूं यहां पर, तो अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर concentration versus rate graph is basically a straight line passing through the region, right? क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जब मैं ये स्केच करूंगा तो इस स्केच को करने के लिए भी मैं स्ट्रेट लाइन लूंगा पासिंग थ्रू द रीजन, और इसको मैंने नाम दे दिया है ए का। ओके, on the figure 2.2 sketch a second line to show a graph of concentration against 1 over T if powdered zinc is used in the experiment instead of zinc foil. Label this line B. Now the बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है ये कि यार ये पाउडर्ड जिंक है, पहले था जिंक फॉइल, अगर आपको याद हो पहले हम यूज कर रहे थे जिंक फॉइल, और अब हम क्या यूज कर रहे हैं, जिंक पाउडर। अगर हम जिंक पाउडर यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स भी ज्यादा हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और जब रेट ऑफ रिएक्शन हायर होता है तो ग्रेडियंट स्टीपर होता है। इसका मतलब इससे ज्यादा स्टीपर होना चाहिए स्केच, तो स्केच हैज टू बी लाइक दिस, लाइक दिस। ये हमारा बी हो गया, ठीक है। सो इट हैज मोर, इट हैज हायर ग्रेडियंट हायर रेट ऑफ रिएक्शन, इट हैज लोअर ग्रेडियंट लोअर रेट ऑफ रिएक्शन। आप कह सकते हैं कि ये जिंक फॉइल की वजह से है, और आप कह सकते हैं कि ये जिंक पाउडर की वजह से है। Now the next is using your data in table 2.1 to deduce the rate equation for the reaction between zinc and HCl। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सो ऑब्वियसली उसके लिए मैं टेबल 2.1 की तरफ जाऊंगा। टेबल 2.1 में देखें कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, इनिशियल रेट भी डबल हो रहा है। जब कॉन्सेंट्रेशन डबल हो, इनिशियल रेट भी डबल हो, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू HCl इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहाँ से यहाँ अगर आप आए तो तकरीबन 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ आए तो रेट भी तकरीबन 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं कि ऑर्डर फर्स्ट है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी चाहें, इसको देख लें आप तो भी फर्स्ट ऑर्डर, इन दो एक्सपेरिमेंट को देख लें आप तो भी फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो रेट भी 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। ओके, दोनों तरह से देखा जाए तो ऑर्डर फर्स्ट है, तो रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ HCl, और HCl का फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए कोई पावर नहीं आएगी, लेकिन हम बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl in experiment 1 and I believe 1 and 3
experiment 1 and 3 is doubled. Rate of reaction is also doubled. Next is at higher concentrations than those shown in table 2.1, significant temperature increases occur. Okay, that's very important aspect. टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होता है. फिर वो कह रहे हैं सजेस्ट हाउ लाइंस ए इन फिगर 2.2 वुड बी डिफरेंट एट दीज हायर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर ले रहे हैं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है. वो कह रहे हैं एक्सप्लेन योर आंसर. सही है, तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन हायर ले रहा हूँ यानी 6 मोल पर डीएम क्यूब से ज्यादा ले रहा हूँ मैं, हमने 6 मोल पर डीएम क्यूब यूज की हुई थी ना मेरे ख्याल से. जी, हम इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जाहिर, और फिर टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, फिर कुछ इस तरह का स्केच बनेगा. मैं बना के दिखाता हूँ आपको स्केच कैसे होगा. रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन. रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं ग्राफ ले रहा हूं तो स्केच कुछ इस तरह का बनेगा. ओके, इस तरह का, क्योंकि कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो रहा होगा, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट जो है वो क्वाड्रुपल टाइम या फोरफुल टाइम इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे at higher concentration, my bad, at higher concentration a curve that moves upward oh my goodness, my words will be formed जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया आपको as rate will increase when temperature increases. This is because kinetic energy of the molecule also increases. Okay. Next is suggest one way in which the temperature increases may be minimized. अच्छा, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्विंचिंग का प्रोसेस भी कर सकते हैं. क्विंचिंग पहले भी बताया मैंने पेपर 5 में. क्विंचिंग में क्या होता है, यूज आइस बॉक्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर. ओके, अच्छा, क्विंचिंग के अलावा आप ये भी तो कह सकते हैं कि हम
जो जिंक फॉइल है उसको 1 ग्राम से कम यूज करें, लेस मास यूज करें, या ये भी तो कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेस मास ऑफ जिंक कैन बी यूज्ड। हम ये भी तो लिख सकते हैं कि मोर वॉल्यूम ऑफ HCl इज यूज्ड। और हम ये भी तो लिख सकते हैं थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ यूज कर लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो ये मैंने 4 लिख के दिए, इनमें से कोई एक लिख दीजिए, मुझे ज्यादा बेहतर ये फर्स्ट वाला लगा है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर मुझे टेम्परेचर को कम करना हो या टेम्परेचर को कम करना हो तो जाहिर सी बात है मैं उसके लिए आइस बॉक्स यूज कर सकता हूँ, क्वेंचिंग का प्रोसेस कर सकता हूँ, राइट। ई द जिंक फॉइल हैज एन ऑक्साइड लेयर। ऑब्वियसली जिंक एक रिएक्टिव मेटल है, एयर में मौजूद ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में। सो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए। वो कह रहे हैं सजेस्ट हाउ द जिंक ऑक्साइड लेयर कैन बी रिमूव बिफोर weighing द जिंक फॉइल। बिफोर weighing आई नीड टू scratch the oxide layer by using the sandpaper. Scratch the oxide layer by using the sandpaper. ठीक है, that's what we have done in O level. ठीक है, next is if the student does not remove the oxide layer, यानी जिंक ऑक्साइड अवेलेबल है अभी भी, ठीक है, the initial rate of reaction is lower than it should be. Explain why initial rate of reaction is lower than it should be. भाई आपके पास बहुत कॉमन, बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास जिंक ऑक्साइड है, आप HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट होगा जिंक क्लोराइड में और वाटर में। जाहिर सी बात है कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है, तो जब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है यू कैन नॉट फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो होगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से HCl का रिएक्शन स्लो होता है। लेकिन अगर मैं स्क्रैच कर दूं और स्क्रैच करने के बाद इसको HCl से रिएक्शन करवाऊं तो फ्रेश जिंक मेरे पास आएगा, वो फ्रेश जिंक फिर रिएक्शन करेगा, रिएक्शन कर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। सही है, तो जाहिर सी बात है स्टार्ट में क्या होगा कि इन दोनों के रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर होगा। सो हम सिंपल ये लिख सकते हैं यहाँ पर, हम सिंपल यहाँ पर ये लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड लेयर कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस when
reacting with hydrochloric acid. ओके, सो हम कह सकते हैं कि इनिशियली at the start rate slow. Hydrogen gas when reacting with hydrochloric acid, so rate of reaction is slow at the start. Okay, let me fix this. So yeah, so that's the end of this question. Thank you very much, guys.